So it's a بہت انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ. اب آپ کہیں گے کب انٹرسٹنگ ٹائمز نہیں ہوتے؟ تو پھر میں تم ہی کہہ دو تو میں چپ کر جاتا ہوں. اصل میں تھوڑا بہت سمجھنا شروع ہو گئی ہوں نا, ریڈیشنز کو پک کرنا شروع ہو گئی ہوں میں. میں ندیم صاحب پہ پکچرائز گانا سن رہی تھی, کاش کوئی مجھ کو سمجھاتا میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا. تو آج وہی دن ہے کہ میں سمجھا دوں گا. ہاں سمجھ گئے نا آپ. ٹھیک, ایسا کچھ ہو رہا ہے جیسے کوئی ایکسپائری ڈیٹ دے رہا ہے گورنمنٹ کی, کوئی بتا رہا ہے کہ کوئی آ گیا ہے تو اس کے لیے اچھا ہے, اس کے لیے اچھا نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں سارے موضوعات آپ کے سامنے رکھوں حسب معمول, اور آپ ہمیں آسان الفاظ میں جیسے سمجھاتے ہیں تو مجھے سمجھ آ جائے, میں ندیم صاحب کا وہ گانا نہ گنگناؤں. بالکل ڈن ہو گیا. اصل میں اس ہفتے نا بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں 3 محاذ پر. ایک محاذ ہے عدالتی, دوسرا معاشی اور تیسرا عسکری محاذ. تینوں ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا تھا. عدالتی محاذ سے تفصیلی فیصلے کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ ریزرو سیٹس پہ وہ جو 12 جولائی کا فیصلہ آیا, آپریٹو حصہ اس کا سامنے آیا تھا, لیکن تفصیلی فیصلہ آنا تھا باقی, وہ بھی آ گیا. اس کے بعد معاشی محاذ پہ بڑی خبر پاکستان کے لیے یہ کہ IMF ڈیل ہو گئی ہے اور ہمیں اب پیسے ملنے جا رہے ہیں. اور جو عسکری محاذ پر ہے وہ DGISI ان کی ہو گئی ہے تقرری, وہ اپنا چارج سنبھالیں گے. اور حیرت انگیز طور پر ان تینوں سے جڑی خبریں 30 ستمبر کے دن کو بہت اہم بنا رہی ہیں. 30 ستمبر کے دن کو یوں اہم کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں 63A کو مقرر کر دیا گیا ہے پیر والے دن کو, جسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس 5 رکنی بینچ کو ہیڈ کریں گے. پھر جو پیکج ہے IMF سے جو ہمیں مل چکا ہے, اس کی پہلی قسط کا اجرا پیر والے دن یعنی 30 ستمبر کو ہونے جا رہا ہے. اور نئے DGI جو ہیں وہ بھی 30 ستمبر کو سنبھالیں گے. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اکتوبر میں پھر کیا ہونے جا رہا ہے. یہ مہینہ ہمیشہ سے بڑا انٹرسٹنگ رہا. صدر زرداری کا تو اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے. تم تو اسٹرالوجی بھی کچھ کرتی ہو نا اسپیئر ٹائم میں, ستارے گھوم رہے ہیں, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. اس دن تم مجھے کچھ کہہ رہی تھی کہ جی آپ کا ستارہ وہاں سے وہاں پہنچ گیا اور اگلا ماہ آپ کے لیے اچھا ہوگا. ٹورس کے لیے بہت اچھا ٹائم جا رہا ہے. اچھا, آپ نے اس دن کہا تھا نا کہ میں یہاں نہیں ہوں گا, تو آپ کو میں کہہ رہی ہوں آپ کی فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے, آپ ویسے بھی جا رہے ہیں. لیکن کوئی اور جا رہا ہے یا نہیں, کوئی آ رہا ہے یا نہیں, اس بارے میں اب آپ سے مجھے یہ جاننا ہے کہ عدالتی محاذ پر بھی جو چھریاں وہ کافی تیز تیز چلنا شروع ہو گئی ہیں. اب اس میں منصور علی شاہ جو سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے, انہوں نے چیف جسٹس کے سیکرٹری کو خط لکھ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی پر کچھ اعتراضات اٹھائے. اس پر چیف جسٹس آف پاکستان کا جواب آیا. پھر چیف جسٹس نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو جو خط لکھا تھا فیصلے کے اپلوڈ ہونے اور وہ وضاحت جو سامنے آئی تھی سپریم کورٹ کے 8 ججز کی, اس پر بھی جواب آ گیا. دیکھیں نا کتنے پیچیدہ معاملات ہیں, سو مینی تھنگز. لیکن میں آپ سے سادہ سا سوال یہ کروں گی کہ جسٹس منصور کے تحفظات کے جواب میں جو چیف جسٹس نے جسٹس منیب کے خلاف ایک چارج شیٹ بنائی ہے, ریمارکس بھی آ رہے ہیں, خط بھی لکھے جا رہے ہیں, اور ججمنٹس میں بھی ایک دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. اس کا رزلٹ کیا نکلے گا, اس بارے میں آپ کی الیکشن کے فوری بعد ایک پریڈکشن بھی ہے, وہ شامل کریں یا آپ مجھے جواب دے دیں گے؟ نہیں دکھائیں نا کیا کہا ہے, مجھے بھی یاد آ جائے گا نا. یاد آ جائے گا, چلیں جی یاد دہانی کے لیے. عوام کا پریشر بڑا زبردست ہوتا ہے. جوڈیشری نے دیکھا ہے کہ عوام نے ووٹ ڈال دیا PTI کے لیے, اب جوڈیشری بھی تو عوام سے ہی ہے نا, تو اب جوڈیشری بھی اس کا بھی رویہ اور تبدیل ہوگا. پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی جوڈیشری PTI کے حق میں تھی, عمران خان کے حق میں تھی. اندر کیا حالات ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہے, مگر لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ بہت سا سپورٹ ہے فار PTI رینک اینڈ فائل میں. تو اگر ایسی سچویشن ہے تو جوڈیشری بھی پھر اسی طرف جائے گی نا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرائسس بڑھ سکتی ہے اگر جوڈیشری کود جاتی ہے اور PTI کے حق پہ فیصلے کرنا شروع کر دیتی ہے. دین وی ہیو اے پرابلم آن آور ہینڈز, اینڈ دین میرے سے مت پوچھے پھر کیا ہوگا. بیسٹ کہ وہاں ہم نہ جائیں. میں ستاروں کی چالیں پڑھتی ہوں, آپ سمجھتے ہیں, اور یہ 7 مہینے پہلے کی آپ کی باتیں ہیں, تب ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اب آپ مجھے بتائیں یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ یہ معاملہ رکنا نہیں ہے, یہ معاملہ اب چلے گا. جس طریقے کے ساتھ چیف جسٹس صاحب اور جو چیف جسٹس بننے والے ہیں وہ صاحب کھل کے آپ ایک دوسرے کے خلاف آ گئے ہیں, اور جسے کہتے ہیں نا بیریکیڈز کھڑی ہو گئی ہیں اب. اور ایک طرف منصور علی شاہ صاحب ہیں, ان کے ساتھ 6-7 ججز ہیں. دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, ان کے ساتھ 4-5 ججز ہیں, اور ان کے ساتھ پارلیمنٹ ہے, ان کے ساتھ گورنمنٹ ہے. اب اس صورت میں اگر آپ تاریخ دیکھیں تو منیب اختر اور منصور علی شاہ کو شکست ہوگی, اور یہ جو لوگ ہیں ان میں سے میری یہ پیشن گوئی ہے کہ ایک صورتحال تو یہ ہے کہ 7-8 لوگ سارے اٹھ کے ریزائن کر دیں کسی نہ کسی سٹیج پہ اور باہر چلے جائیں, اور وہاں جا کے یہ
वकला हजरात को उकसाएं और कहें कि एक लॉयर्स मूवमेंट चलाएं। अब वो और बात है कि लॉयर्स मूवमेंट कामयाब हो सकती कि नहीं, वो अगली बात हम कर सकते हैं, मगर अभी यहीं छोड़ देते हैं। और दूसरी सिचुएशन ये है कि ये टूट जाएं, इनके अंदर से 4-5 चले जाएं मंसूर शाह और मुनीब अख्तर के साथ, और 2-3 जो हैं वो न्यूट्रल हो जाएं एक किस्म के, और वो ज़ाहिर है न्यूट्रलिटी इन दिस केस वुड बी कि वो काजी फायज़ ईसा और बाकी जजेस का साथ दे दें क्रिटिकल एरियाज़ में, जो कि वही होता है हमेशा। तो अब अगर दोनों सूरतों में मैं समझता हूँ कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर और इनके करीबी जो 3-4 लोग हैं, दे विल बी इन द डॉक। अब बिकॉज द अपोजिंग साइड इज़ वेरी पावरफुल। अच्छा, जैसे इमरान खान रिलाई कर रहा है ऑन अ पॉपुलर मूवमेंट टू रिस्टोर हिम टू पावर, इसी तरीके के साथ ये जजेस भी शायद इनके ज़हन में भी यही बात है कि हम भी क्योंकि पॉपुलर ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए शायद हम अगर बाहर चले जाते हैं तो ये पॉपुलर ओपिनियन हमारा साथ देगा और हम भी लॉयर्स मूवमेंट टाइप की चीज़ पॉपुलर रिवोल्ट हम कर सकेंगे। अच्छा, अब ये बात बाद में अगर आप पूछना चाहें तो आई टेल यू व्हाट माय व्यू इज़, बट एट द एंड ऑफ द डे जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिलसिला अब ज़्यादा देर चल नहीं सकता, ये अक्टूबर के अंदर ही ये मामले तय हो जाएंगे। गवर्नमेंट डिटर्मिन्ड है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएगी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएगी, और अगर तो शाह साहब रहना चाहते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट इवन एज चीफ जस्टिस, बट वो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर से उसको हटा लिया जाएगा। ही विल नॉट बी अलाउड टू, और नौ मुनीब अख्तर एंड देयर पीपल विल नॉट बी अलाउड टू होल्ड फोर्थ ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। ये फैसले हो चुके हैं, मैं ये अपनी कोई राय नहीं दे रहा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये फैसले हो चुके हैं कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल दे अलाउ दिस regime to be unraveled by a clutch of judges who are obviously in their eyes biased politically and under pressure from various sources shall we say। और खान साहब सबसे ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, हर रोज़ उनका बयान आ जाता है कि मंसूर, और पीटीआई वाले जो उम्मीद रख रहे हैं कि जी मंसूर साहब आएंगे और पिछली इलेक्शन की छुट्टी करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये सारी रिलायंस जो है ऑफ पॉपुलर पार्टीज ऑन द जुडिशरी। इन द पास्ट जुडिशरी उसी वक्त कामयाब हुई है जब इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ रही है, मगर जब इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं होती तो फिर जजेस के ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। इनफैक्ट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स नहीं इम्प्लीमेंट हो सकते, अगर इस्टेब्लिशमेंट रोकना चाहे तो रोक देती है। इसीलिए आपने देखा जब भी प्राइम मिनिस्टर्स ने कोई ऐसे ऑर्डर्स दिए जो कि इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं होते थे तो गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाती थी, ऑर्डर्स फॉलो नहीं होते थे, अगर फॉलो होते भी थे तो हाफ हार्टेडली फॉलो होते थे, मगर फिर प्राइम मिनिस्टर को माफ़ नहीं किया जाता था, फिर जुडिशरी के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी कराई जाती। तो जुडिशरी का तो इस किस्म का रोल रहा है। अब अगर सूरत हाल ऐसी है कि वो दे वांट टू स्टैंड अप एंड बी काउंटेड, तो इट विल बी काउंटेड एज अ पॉलिटिकल gesture, not as a gesture of law and justice or constitution। ये एक assessment मेरी नहीं है, this is the impression, the perception outside। अच्छा, अब आइए आप, तो I suspect कि ये गेम जो है जुडिशरी वाली, ये अक्टूबर के एंड से पहले सेटल हो जाएगी, और एस्टैब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट एंड इलेक्शन कमीशन ये जीत जाएंगे, और ये 5-7 जजेस जो हैं दे विल लूज। लेकिन इस तफसीली फैसले में ये भी कहा गया था कि अमल दरामद ना करने के नताइज होंगे, तो अगर गेम इस तरह फाइनल फेज़ में दाखिल हो चुकी है और आपने कहा कि ये ख़बर है कि फ़ैसले हो चुके हैं, तो ज़ाहिर है दूसरी तरफ से भी तो कोई जवाबी वार आएगा ना, किसी ना किसी को तो तौहीन अदालत में धरा जा सकता है। तौहीन अदालत में आपको बुलाया जा सकता है, आप नहीं जाते, क्या कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा? दिस इज़ द प्रॉब्लम कि कोई ऑर्डर जो है अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स नहीं है जिसके ज़रिए वो अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करा सके। ऑल ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ तक जो जज हजरात चले गए हैं, मैं समझता हूँ दिस इज़ अ मिस्टेक। मैं उनके सेंटिमेंट्स को बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा, वो बहुत हाई प्रिंसिपल्स के लिए वो समझते हैं कि वो लड़ रहे हैं, और उनके जो साथी हैं वो भी यही समझते हैं, मगर जो बेसिक परसेप्शन है हर जगह पे वो ये है कि ये सियासी मामला हो चुका है। अब ये इंसाफ जो है वो सियासी इंसाफ ढूंढ रहे हैं, और ये जब ये कहते हैं कि टोटल इंसाफ ढूंढ रहे हैं हम, तो टोटल इंसाफ का तो कॉन्सेप्ट मैंने पहली दफ़ा इस किस्म की संजीदगी के साथ सुना है कि टोटल जस्टिस। अब ये मैंने पहले भी शायद कोई एग्जांपल दिया या नहीं दिया, मैं फिर देना चाहूँगा।
हाँ, क्योंकि टाइम है आज हमारे पास गपशप मारने का। जी, लेकिन मौज़ूआत भी बहुत हैं। हाँ, कोई बात नहीं, ये दिलचस्प बात बताऊँ। जी बताएं। जब मैं चेयरमैन था पीसीबी का, तो हमने हिंदुस्तान की बीसीसीआई के साथ एक मुआहदा किया था कि वो हमारे साथ बायलैटरल मैचेस रिज्यूम करेंगे। ये 2014 की बात है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। 2015 में हमने ये मैचेस खेलने थे, पूरी सीरीज खेलनी थी, और उसके सारे के सारे पैसे जो थे वो पीसीबी को मिलने थे। ये कॉन्ट्रैक्ट था। और ये 2011 के बाद पहली दफ़ा थी कि इस किस्म की कोई डील हुई, अच्छा विच आई नेगोशिएटेड। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई इंडिया में, और जब ये वक्त आया खेलने का, तो बीसीसीआई ने कहा जी हमें हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं मिल रही, इसलिए हम अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको नल एंड वॉइड करते हैं। अच्छा। ठीक, मेरा मौक़िफ़ ये था कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि आपको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो तो इट्स अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, आप प्राइवेट पार्टी हैं, आप गवर्नमेंट पार्टी नहीं है, और आपने एक प्राइवेट पार्टी ने हमारे साथ एक तय किया है, तो ये होगा तो हम आप फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे अदालतों के। बहरहाल उन्होंने कैंसिल कर दी सीरीज़, हम उनको अदालत ले गए, इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट में बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला आया। हमारा मौक़िफ़ ये था कि चले, अगर हम मानते हैं कि अगर इनकी गवर्नमेंट ने इनको इजाज़त नहीं दी, तो हमें कोई एविडेंस दे दें, कोई ख़त दिखा दें, कोई प्रूफ दे दें कि गवर्नमेंट ने रोका है इनको। अच्छा, स्मार्ट। तो उन्होंने आगे से कहा कि नहीं, हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। तो हमने कहा अगर ऐसी चीज़ नहीं है तो हम आपके बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं? ये अदालत है, बातों पे तो यकीन नहीं होता, कोई एविडेंस दें। हम तो कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहे हैं आपको कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास एविडेंस नहीं है, हमें तो कन्वे कर दिया जाता है। अच्छा, ठीक, इशारों में। अच्छा, तो ख़त्म, जजेस ने सारी बात सुन ली। हमारा ख्याल था हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इनके पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है। तो हुआ क्या, जज ने जब 3 जज थे, उन्होंने जब फैसला दिया तो इंडिया के हक़ में फ़ैसला दे दिया, हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया। नॉट ओनली हमारे खिलाफ, उन्होंने कहा कि ये जो खर्चे भी हैं ये भी आप ही दें। ज़ाहिर है कि यहाँ पाकिस्तान में बड़ी तनकीद हुई कि आप क्यों गए थे, आपने गलत किया, पैसे ज़ाया कर दिए, ये हो गया। अच्छा। मगर बड़ी वो बात छोड़ दें आप, दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने लिखा क्या था। मैं अब वो बताने लगा हूँ क्या लिखा था, और उसका जो रेफरेंस है वो आज की पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है उसका मैं देने लगा हूँ। जजेस ने ये लिखा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको हमने बड़े गौर से देखा है। अच्छा। एक माइक्रोस्कोप के साथ देखा है। ठीक है। तो ये तो पक्का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें तो इधर उधर हो नहीं सकता इंडिया। फिर ये तो पक्का है, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इंडिया ने वायलेट कर दिया। अच्छा। फिर कहते हैं कि अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट से दूर से देखें, बाइनोकुलर के साथ। अच्छा। माइक्रोस्कोप के साथ नहीं, बाइनोकुलर के साथ देखें, तो फिर बात समझ आती है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने इनको इजाज़त नहीं दी होगी। ओहो, अच्छा। पहले पूरा माहौल देखा ना, बीजेपी फलाना ढिंगड़ा, ओ दूर से देखा, दूर से ये भी नज़र आया, बीजेपी भी नज़र आ रही है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। माइक्रोस्कोप में तो सिर्फ यही नज़र आएगा ना जब ऐसे करके देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि इस सूरत में हम बाइनोकुलर के साथ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ भी सूरत हाल ऐसी है कि इन्होंने यहाँ भी वो टोटल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने निकाला है कि हम तो सारी चीज़ देख रहे हैं, इसीलिए जहाँ एप्लीकेशन भी नहीं आई सीट्स के ऊपर, वो भी हमने दे दी एंड सो हम टोटल जस्टिस की बात कर रहे हैं। तो बाइनोकुलर के साथ देख रहे हैं। ये माइक्रोस्कोप जो कानून कहता है कि माइक्रोस्कोप के साथ ही कानून को देखना चाहिए, कभी भी बाइनोकुलर के साथ कानून को नहीं देखा जाता। अगर बाइनोकुलर के साथ देखेंगे तो सियासी चीज़ें नज़र आती हैं जी। और कोशिश यही होनी चाहिए कि आइन को फॉलो किया जाए और सियासत ना की जाए। तो यहाँ भी वही हुआ है। तो अब वो सियासत क्योंकि शुरू हो चुकी है आयशा, और काफ़ी संजीदगी के साथ सारी जो पार्टीज हैं वो सियासत कर रही हैं। पार्लियामेंट भी सियासत कर रही है, उसका तो काम है। EC भी सियासत कर रहा है जी। गवर्नमेंट तो लीड कर रही है सियासत जी। तो ये है टोटल सियासत।